राजस्थान, पाकिस्तान। मोसेस पाकिस्तान से है। हमसे मजाक कर रहे हैं। गंभीर मत हो जाओ। मोसेस, आई नो, मोसेस उत्तर यूपी से है ना? मोसेस यूपी से हो? या छत्तीसगढ़ से हो? छत्तीसगढ़, पाकिस्तान yes. वाला। Okay, so here we have a very exciting online student. He says, Pawan says he's from Odisha. Good, और एक nice. भाई है पवन जो उड़ीसा से हैं। We're just getting to know how many people are from different states. So, और केवल इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं कितने राज्यों से हैं। so there's one student called Moses, and we just made fun of him saying he's from Pakistan. So he was too taken aback and sad, but he's from Chhattisgarh. Yes. Okay, so that was nice. Let's continue. We are going to be we are not going to be studying chapter 5, which is the next chapter after 4. We finished chapter 4 before we went for the break. और देखिए हमने चौथा अध्याय समाप्त किया था, उसके बाद हम ब्रेक में गए थे, लेकिन 5वां अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे। Because it is already some things that we already studied in chapters 1, 2, and chapters 1 and 2. और जो पहला और दूसरा अध्याय है हम उसमें पहले ही इस विषय को पढ़ चुके हैं। Chapter 3 yesterday we studied ministering out of intimacy and obedience. और तीसरा अध्याय जो घनिष्ठता और आज्ञाकारिता के द्वारा सेवकाई जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। That is already again mentioned in chapter 5. और जो कि 5वें अध्याय में फिर से दिया गया है। And ministering based on the finished work of the cross, dominion and authority, presence and power of the Holy Spirit, we studied in chapter 2. और देखिए क्रूस का पूर्ण कार्य, अधिकार और राज्य का स्थान सेवकाई में और पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति जो है हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। So we won't go through it again. हम दोबारा से उसको नहीं पढ़ेंगे। But please take time today evening. You can always read it. और आप समय निकाल कर शाम के टाइम में आप इस पुस्तक को 5वें अध्याय को जरूर पढ़ सकते हैं। Now we look at chapter 6. Some very interesting things in chapter 6. और 6ठे अध्याय को देखेंगे, इसके अंदर में बहुत सी कुछ अनोखी और अद्भुत बातें हैं। There are several passages in the Bible. बाइबल के अंदर में कई सारे ऐसे वचन दिए गए हैं that people take out और जिन्हें लोग निकालते हैं उसमें से, and they try to understand it out of context. और वो उस पद को या उस वचन को उसके संदर्भ के बाहर समझने का प्रयास करते हैं। And, they use that as a basis to tolerate sickness in their bodies. और वो उसको आधार बना लेते हैं कि हम बीमारी को अपने शरीर के अंदर में सहेंगे। And also tolerate demonic work in their body. और या कोई शैतानी प्रभाव उनके शरीर पर हो रहा है उसको भी सहने के लिए उन वचनों को वो आधार बनाते हैं। We must always remember और हमेशा हमें इस बात को याद रखना है when we are interpreting scripture, और जब हम वचन का अनुवाद या अर्थ निकालते हैं, we must always interpret one scripture in the light of other scriptures or in the light of the whole Bible. और जब हम किसी भी वचन का अर्थ निकालते हैं तो हमें पूरी बाइबल की रोशनी के मध्य में उस वचन को समझने की जरूरत है। So understand a verse. If you don't understand a verse, you understand it in the light of the entire scripture or where that what is talking about in other places in the Bible. और केवल एक उसी वचन को समझने का प्रयास ना करें, लेकिन वैसा ही वचन बाइबल में दूसरी जगहों पर जो लिखा है उसकी रोशनी में या पूरी बाइबल की रोशनी में बाइबल के उस वचन को समझने का प्रयास करें। And we also interpret it in the light of the person and the work of Jesus Christ. और यीशु मसीह के व्यक्तित्व और क्रूस पर उसके किए गए काम की रोशनी में
उस वचन को समझने का प्रयास करें। Everything that God wanted to reveal to mankind और जो कुछ परमेश्वर मानव जाति को प्रकट करना चाहता था, was revealed in the person and the work of Jesus और Christ. वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उस पे उसके कार्य जो क्रूस पर किया, परमेश्वर ने उसमें प्रकट किया है। Anything we want to understand about God, His nature, why He does things, how He does things, how to interpret word, we need to look at what Jesus spoke, what Jesus taught, what Jesus did. और यदि कुछ भी बात अगर हमें समझना है कि यीशु ने क्यों किया, परमेश्वर ने कैसे किया, क्या के लिए किया, तो हमें इस बात को उसकी रोशनी में समझना है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार, कब, कहां, क्यों किया। And if anything does not align with what Jesus taught and did, then we don't, we leave it aside. और जो कुछ यीशु मसीह ने जिन कार्यों को किया उससे अगर मेल नहीं खाता है तो हमें उन्हें एक तरफ छोड़ देना है। So all of you, we look at some of the things which we interpret wrongly. और देखिए कुछ बातों को हम देखेंगे जिनका गलत अर्थ हम बाइबल से निकालते हैं, Scripture passages. और जो बाइबल के पद हैं उनका गलत अर्थ निकालते हैं। So the first one we look at is 2 Corinthians 12:7-10. और सबसे पहला है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन तक। Yeah, so everyone can read it quickly by yourselves. और हर एक जन अपने लिए जल्दी जल्दी पढ़ ले। It's on page number 137. और ये 137 पेज पर है। 2 Corinthians 12:7-10. और दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 से लेकर 12 वचन तक। सब अपने आप। So what is Paul talking about here? यहाँ पौलुस क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? किस विषय में बात कर रहा है? What is he talking about? और किस विषय में बात कर रहा है? A thorn in his flesh. और उसके देह में एक कांटा चुभा है। And what does he say about the thorn on the flesh? और वो उस कांटा जो उसके शरीर में है उसके बारे में क्या बोलता है? Who had given him this thorn in the flesh? और किसने उसे ये कांटा दिया है? Yes, a messenger of Satan. और शैतान का एक दूत है। The messenger here is the same Greek word which is angelios, which means angel. और देखिए जो संदेश का ये दूत का जो Yeah, the और- Hebrew word, और- sorry, the Greek word is angelios. और जो यूनानी शब्द है वो एंजलियोस है जिससे एंजल या स्वर्गदूत उत्पन्न होता है। So here it's basically an angel of Satan और यहाँ इस बात को दर्शाया जा रहा है कि शैतान का एक दूत है or messenger of Satan. और यह शैतान का संदेश वाहक है। And what is the messenger of Satan doing? और वो कर क्या रहा है? What is a thorn in the flesh? और उसकी देह में जो चुभाया गया कांटा है वो क्या है? Something painful, okay? और कुछ दर्दपूर्ण। What is Paul talking about? What does he पौलुस say? क्या बोल रहा है यहाँ पर? The messenger of Satan to what? To do what? और जो कांटा चुभाया गया या शैतान का जो दूत है वो किस लिए उसके देह में है या कांटा क्यों चुभाया गया है उसे? Look at verse 7. It says there. और 7वां वचन देखिए वहां लिखा हुआ है। Thorn in the flesh was given to me by whom? Messenger of Satan. To do what? Yes, to buffet me. और देखिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे।
That means to strike me repeatedly. और इसका मतलब है कि निरंतर मुझे मारता रहे। So how is this, what is this thorn in the flesh? और उसकी देह में जो कांटा चुभा है वो क्या है? This is oppositions, difficulties, persecutions, temptations, difficulties that Satan is constantly bringing about in Paul's life. और ये वो सब है जो शैतान निरंतर पौलुस के जीवन में लेकर आता है, सताव लेकर आता है, उसकी मार, उसकी पीड़ाएं, परीक्षाएं जो निरंतर उसके जीवन में आ रही हैं, वो सब वो है। And what are some of these troubles and hardships? Paul already writes about this in 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27. और देखिए जो भी और समस्याएं हैं पौलुस के जीवन में, वो दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 से लेकर 27 वचन तक उन सारी बातों का वर्णन वो कर रहा He है। lists out all of those troubles and difficulties. और वो वहां पर सूचीबद्ध कर रहा है उन सारी समस्याओं का जो उसके जीवन के अंदर में आती हैं। And some of these troubles and difficulties and hardships came because Satan was doing this in his life. और देखिए इनमें से बहुत अधिकतम उसके जीवन के अंदर में जो कठिनाइयां, समस्याएं आई हैं, वो सब शैतान के कारण ही उसके जीवन में आई हैं। Some theologians and commentary writers say that Paul's thorn in the flesh was an eye problem or a hand problem, but he does not mention that here. He says it is from the messenger of Satan, it is to buffet me. That means it is to repeatedly strike me. और देखिए बहुत सारे बाइबल के विद्वान लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो कांटा चुभाया गया वो उसकी आंख में समस्या थी, उसके हाथ में समस्या था, लेकिन बाइबल इस प्रकार से नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि मुझे कांटा चुभाया गया ताकि शैतान का दूत मुझे घूसे मारे। And why did God allow this? क्या परमेश्वर ने अनुमति दिया था? Yes. And how many times did Paul pray? और कितनी बार पौलुस ने प्रार्थना किया इसके लिए? Yeah, 3 times. But did God remove it? और 3 बार उसने जरूर प्रार्थना किया। क्या परमेश्वर ने उसे दूर किया? What does God tell him? और परमेश्वर उससे क्या बोलते हैं? My grace is sufficient for you. और मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। So God simply did not remove this or take away this messenger of Satan. और परमेश्वर ने यूं ही वो उस शैतान के दूत को उसके जीवन से दूर नहीं किया, But he told Paul to rely on his grace लेकिन परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि तू मेरे अनुग्रह पर निर्भर बना रहे and to press forward and to overcome what the demon or the demonic work is doing in his life. और जो कुछ शैतानी आत्माएं उसके जीवन में कर रही हैं उन सब पर जय पाकर तू आगे बढ़ता And चला God's जा। grace was enough for him to keep him strong in those situations. और उन सारी परिस्थितियों के अंदर में परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त था कि वो उन पर जय प्राप्त कर सके। Now, why did God allow this thorn in the flesh, a messenger of Satan, to trouble Paul? और अब प्रश्न ये है कि क्यों परमेश्वर ने ये शैतान के दूत को या उसकी देह में ये कांटा चुभने की अनुमति क्यों दिया? See, look at that. It's given there in 2 Corinthians 12, verse 7 to 10. और दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से 10 पढ़ेंगे, उसका भी उत्तर दिया गया है। What is the answer? और उत्तर क्या है? Yes, so that he will be humble. ताकि वो नम्र बना रहे। Why should he be humble? और क्यों उसे नम्र बना रहना है? What's the reason? Look at verse 7. और 7वें वचन पे ही देखिए क्यों नम्र बने रहना है उसको। Abundance of revelation, yes. और प्रकाशनों की बहुतायत के कारण। So Paul received abundance of revelation. और पौलुस ने बहुतायत के प्रकाशन प्राप्त किए। And also he had personal encounters and experiences with God. और उसके साथ साथ उसने व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ मुलाकात भी की। He was also taken up to the third heaven. और उसके साथ साथ वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। And we know that Paul wrote most of the New Testament. और हम इस बात को भी जानते हैं कि नए नियम का बहुत सारा भाग पौलुस के द्वारा लिखा गया है। And for Paul not to fall into a place of pride and to help him to be humble. और पौलुस घमंड में ना गिर जाए, नम्र बना रहे, इसके लिए God permitted this thorn in his flesh. परमेश्वर ने उसकी देह में इस कांटे को चुभाने के लिए अनुमति किया। Now some believers say और कुछ विश्वासी ऐसा कहते हैं this problem और ये समस्या
or this person और ये व्यक्ति or this sickness और ये बीमारी or this disease और ये जो रोग है or something that they're going through और जिस किसी समस्या से होकर वो गुजरते हैं is a thorn in my flesh, और वो मेरी देह में कांटा समान चुभा है and God has allowed it और परमेश्वर ने अनुमति किया है to keep me humble कि मैं नम्र बना रहूं or to keep me under His grace. और उसके अनुग्रह में बना रहूं। Is that right or wrong? क्या ये सही है या गलत है? Right or wrong? और सही है गलत है बताइए। It's not right. और वो सही नहीं है। Why? Because none of us have received the abundance of revelation like Paul did. और देखिए गलत क्यों है? क्योंकि हम में से किसी ने भी पौल के समान बहुतायत के प्रकाशन पाए नहीं है। And God does not tell us that we have to live with those sickness and problems. और परमेश्वर ने हमसे ये भी नहीं कहा है कि हमें उन समस्याओं के साथ में और बीमारियों के साथ वैसा ही जीवन जीना है। He's given us every weapon that we need to fight against sickness, disease and demonic works. परमेश्वर ने हमें हर एक वो हथियार प्रदान किया है जिसके द्वारा उन समस्याओं से, दुष्टात्माओं से और बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। What is the weapons God has given us to fight against sickness, disease and demons? और परमेश्वर ने हमें वो कौन से हथियार दिए हैं जिसके द्वारा हम दुष्टात्माओं से, रोग से, बीमारियों से लड़ सकते हैं? Sorry? The word of God, yes. और परमेश्वर का वचन सही है। Name of Jesus, और yes. यीशु मसीह का नाम दिया गया है। The blood of the lamb, और yes. मेमने का लहू दिया गया है। Authority. और अधिकार दिया है। Sorry? Cross of Jesus Christ. और यीशु मसीह का क्रूस, The power of the Holy Spirit, yes. पवित्र आत्मा की सामर्थ। क्या? Yeah, how can we give that agya? What is the authority? और कैसे आज्ञा देंगे? He has अधिकार क्या given है? us the weapons of warfare, Ephesians chapter 6. और परमेश्वर ने हमें युद्ध के हथियार दिए, इफिसियों उसका 6वां अध्याय। And his praise and worship is another weapon that we can use. और देखिए स्तुति आराधना एक और हथियार है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। Praying in tongues, और अन्य भाषा में प्रार्थना करना fasting and praying. और उपवास के साथ में प्रार्थना करना। All these are weapons that God has given us to fight against sickness, disease and demonic works. परमेश्वर ने ये सब हथियार हमें दिए हैं ताकि हम दुष्टता की सामर्थ और रोग और बीमारी से युद्ध कर सकें। And to overcome the problems and challenges and the difficulties and the sicknesses. और जो बीमारी है, रोग है, समस्याएं हैं और कष्ट हैं, उनके ऊपर में हम जय पा सकें। Not that God is given to us, I live with it and I go on with in life like this. No. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें तो ऐसा ही जीना, उसके संग ही रहना है। नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं है। Another passage that people misinterpret और एक और पद है जिसका लोग गलत अनुवाद लगाते हैं is about Job's troubles. और वो अय्यूब की समस्याओं के बारे में So है। you can look at a lot of verses that are given on page number 139 and top of page number 140. और आप पेज नंबर 139 और 140 के ऊपरी भाग में बहुत सारे वचनों को देख सकते हैं। Now who struck Job and brought calamities and sickness in his family? और किसने अय्यूब पे रोग, बीमारी और सारी समस्याओं को लेकर आया? Yes, we cannot blame God for what Satan did in Job's life and his family. और जो शैतान ने अय्यूब और उसके परिवार में किया, हम उसका दोष परमेश्वर के सर पर नहीं डाल सकते। Yes, God permitted it, but allowed it, but it was not God who did it. और परमेश्वर ने अनुमति जरूर दिया, लेकिन ये परमेश्वर नहीं था जिसने वो किया। So in the same word, in the same light, और उसी रोशनी में we live in a world और हम इस संसार में जीते हैं where the devils and demons are permitted by God और जहां शैतान और दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से अनुमति पाए हैं to do all kind of evil diabolic works. और ताकि वो सारे के सारे शैतानी कार्यों को कर सकें। Sorry, they are not permitted by God, but they are permitted. They are allowed because we gave them the right and the freedom to do it. और हम लोगों ने उन्हें आजादी दिया, हमने अधिकार दिया, इसीलिए परमेश्वर के द्वारा उन्हें अनुमति मिला है कि वो लोग संसार में अपने दुष्टता के कार्यों को कर सके। The devil and his demons can come against us. और शैतान और दुष्टात्माएं हमारे विरुद्ध आ सकती हैं।
can come against believers, और- born again believers. और एक नए जन्म पाए विश्वासी के विरुद्ध आ सकती They है, can bring temptations, hindrances, and other obstacles in our lives. और वो हमारे जीवन के अंदर में परीक्षाओं को लेकर आ सकते हैं, रुकावटों को लेकर आ सकते हैं, और भी कई बाधाओं को वो उत्पन्न कर सकते हैं। And God permits this to go on, परमेश्वर अनुमति देता है कि वो यूं आगे बढ़े, चलते रहें। but God uses these things परमेश्वर इनका उपयोग करता है to train and mature us into Christ likeness. कि हम मसीह के समान परिपक्व हो जाने के लिए परमेश्वर इन सभी का इस्तेमाल करता, हमें प्रशिक्षण के लिए। But you need to understand, God does not tell the devil to do this to help us to grow and train in righteousness. और लेकिन इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति नहीं दिया कि वो आपको धार्मिकता में प्रशिक्षण करने के लिए आप वो इस्तेमाल, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Yeah, but when Satan does that in our lives, और लेकिन जब शैतान हमारे जीवन के अंदर करता है he allows it, और परमेश्वर अनुमति देता है, but God can turn it around for us लेकिन परमेश्वर हमारे लिए इसे पलट सकता है and turn it for our own good और वो हमारे भलाई के लिए उसे बदल सकता है। and use it to train and mature us in Christ likeness. और परमेश्वर उस परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकता है कि वो हमें प्रशिक्षित करे कि हम मसीह के समान बन जाएं। And also God wants us और परमेश्वर उसके साथ साथ ये भी चाहता है कि हम to fight the good fight. एक अच्छी लड़ाई लड़ें। That means he wants us to use the weapons he's given us to fight against Satan and all of his works that is coming against और us. इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक हथियार दिए हैं शैतान और उसके कार्य के विरुद्ध लड़ने के लिए, हमें उनका उपयोग करना है। Are you able to understand what I'm saying? Very important here. और क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। Because some of us think as believers we should not face temptations, problems and difficulties. और देखिए, क्योंकि हम एक विश्वासी होने के नाते कई बार समस्याओं में, परीक्षाओं में यूं ही नहीं पड़ते। Or if some believer goes through it, other believers say, hey, that person must be doing some secret sin. That is why they're going through some problem. और यदि कोई विश्वासी अगर परीक्षा से जा रहा है, समस्या से जा रहा है, तो दूसरे विश्वासी देखकर कहते हैं, अरे उसने कोई गुप्त में पाप किया है, यही कारण है कि उन समस्याओं से वो जूझ रहा है। It may not be. और वो ऐसा नहीं हो सकता Like in है। Paul's case. और पौलुस के समान Like में, in Job's case. और जैसे अय्यूब के साथ हुआ, Satan can bring about troubles and temptations and difficulties in our lives. और शैतान हमारे जीवन के अंदर मुश्किलें ला सकता है, परीक्षाएं ला सकता है। But at those times we need to stand up and fight. और ऐसे समयों पर हमें खड़े होकर उनसे लड़ने की आवश्यकता है। So tell your neighbor, stand up and fight. और अपने पड़ोसी से कहें, खड़े होके लड़ो। Yes, it's very important for us to know that we have to stand up and fight. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें खड़े होकर लड़ने की आवश्यकता है। But most of us don't stand up and fight. हाँ, लेकिन हम में से अधिकतम लोग जो हैं वो नहीं लड़ते हैं। What do we do? हम क्या करते हैं? What happens at those times when we Oh. face temptations, problems and difficulties? What do we do? और जब समस्याएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो हमारा व्यवहार क्या होता है? हम How क्या are we- करते हैं? and what are we filled with? What kind of things we are filled with? और किन बातों से आप भर जाते हैं? Yeah, fear. और डर से भर जाते हैं, There is doubt whether God loves us or not. और संदेह से भर जाते हैं कि परमेश्वर शायद प्यार करता है कि नहीं करता है, Or पता नहीं। God is for us or against us. क्या परमेश्वर हमारे साथ है या हमारे विरोध है? And what do? We sometimes even go away from God. और हम करते क्या है? कई बार तो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से ही दूर चले जाते We हैं, think God is putting all this in our lives, and so I don't want to do anything with this God. और हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ही तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में डाल रहा है, मुझे ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं But है। let me tell you something, listen very carefully. और मुझे ध्यान से सुनिए, मैं एक बात आपसे कहती हूँ। When the devil puts problems and difficulties in your life, और जब शैतान आपके जीवन के अंदर मुश्किलें और समस्याओं को डालता है even temptations, और परीक्षाओं को भी डालता है, when you yield to it and you don't overcome it, and there is fear and doubt and disobedience, और
when you don't overcome it, but you yield to it, और देखिए आप उस पे जय तो नहीं पाते लेकिन उसमें बने रहते हैं, and you're filled with fear, doubt, and you disobey God, और आप अब डर से भर जाते हैं, संदेह से भर जाते हैं, और आप परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, then you are doing something very dangerous. और तब समझ लीजिए आप बहुत खतरे का काम कर रहे You are हैं, open the door fully for the demonic activity to work in your life. और आप अपने जीवन के दरवाजे को पूरी तरह से खोल रहे हैं कि शैतानी आत्माएं पूरे अधिकार आपके ऊपर कर कर अपने कार्य को आपके जीवन में करें। And what did Jesus say that Satan comes to? और यीशु ने क्या कहा है, ये शैतान किस लिए आता है? Steal, kill, and destroy. और चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है, And your life will be destroyed. और आपका जीवन समाप्त हो He will जाएगा। steal your joy, your peace of mind, your health, everything. आप अपने आनंद को खो देंगे, आप अपने शांति को खो देंगे, आप अपने स्वास्थ्य को खो देंगे। And it's not God who can do anything for you. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। We saw yesterday the sovereignty of God. और हमने कल परमेश्वर की संप्रभुता को देखा था, And we saw that God is sovereign, He has His will, but it's also man's responsibility. और हमने इस बात को देखा था परमेश्वर संप्रभुता रखता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की भी जिम्मेदारी बनती है। And at those times we cry to God, God, why aren't you not doing anything? और उस समय पे हम चिल्ला रहे, रो रहे, परमेश्वर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? But God is saying, hey, I've given you everything to do. You have to stand up and fight. और परमेश्वर कहता, अरे मैंने तेरे सब कुछ हाथ में कर दिया, तुझे खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। You speak the word to the enemy. और तू शत्रु से मेरे वचन को बोल। You speak the word to the giant, to the mountain, and it will move away. और तू उस दानव से, उस पर्वत से मेरे वचन को बोल, और वो तेरे रास्ते से हट जाएंगे। Speak the pray the prayer of faith, and it will move. और प्रार्थना कर, विश्वास की प्रार्थना कर, और वो हट जाएगा। Use the sword of the spirit, which is the word of God, और उस आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका इस्तेमाल कर। and protect your head and your thoughts in your mind with the helmet of salvation, which is the word of God. और अपने सर और अपने विचारों की सुरक्षा कर, किसके द्वारा? उद्धार के टोप के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है। And God is saying, quieten down and listen to me. I will give you the strategies to fight. और परमेश्वर कहता है, शांत हो जा और मुझे सुन, मेरे पास बैठ, मैं तुझे जीवन की रणनीतियां बतलाऊंगा। God will give us the strategies to fight, but we need to go to God. What do we do at that time? We are filled with fear, doubt. We are running from pillar to post, from people to people. Pray for me, but we are not willing to hear from God. और देखिए क्या करते हैं हम, जो हैं परमेश्वर के पास बैठते नहीं, उसके पास जाते नहीं, हम तो इधर से उधर भागते हैं, किसी को पकड़ते हैं, कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, कहीं इधर से उधर हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो जरूरत है हम बैठने की वो नहीं करते हैं। But we see Job, even though he went through all this, he maintained his integrity and faith in God. और अय्यूब को देखें, भले ही वो इन सारी समस्याओं से होकर गुजर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी और विश्वास को बनाए रहा। He stood strong in his devotion to God. और परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति में वो बना रहा। So we can't say that, okay, it happened to Job and he got destroyed. The same thing is happening in my life. और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अय्यूब के साथ भी जैसा हुआ वैसा ही मेरे जीवन में भी हो रहा है, I can't do anything. और मैं कुछ नहीं कर सकता। But God is saying, hey, Job did not have all of those weapons of warfare. He did not have that revelation. You have that revelation now. Use it. और परमेश्वर कहता, अय्यूब के पास वो सब हथियार नहीं थे, ना ही वो प्रकाशन था, लेकिन आपके पास तो हथियार हैं, आपके पास में प्रकाशन है, आप करिए। And the other thing about Job is, और अय्यूब के बारे में एक और बात, the Bible says he greatly feared about all of these calamities would come upon him and his family. और बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि अय्यूब जो है इन सारे समस्याओं और विपत्तियों से डरता था कि उसके परिवार पर ये आ न जाएं। Some of you are very fearful. और आप में से कई लोग बहुत भयभीत होते हैं। You say, I'll also get this disease. और आप कहते हैं कि अरे शायद मुझे भी ये रोग लग जाएगा, I will never be prosperous. और मैं कभी
संपन्न नहीं हो I'll पाऊंगा be a failure. और मैं हमेशा असफल रहूंगा My marriage will not work. और मेरा विवाह नहीं चलेगा My career will not grow. और मेरा जो भविष्य है वो बनेगा नहीं, My business will not grow. मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। So we speak calamity over our own lives. और हम अपने जीवन के ऊपर में खुद समस्याओं को बोलते हैं And we see that Job greatly feared these calamities and these calamities came upon him. और हम इस बात को देखते हैं कि जब अय्यूब इन सारी विपत्तियों से समस्याओं से डरता था, वही सारी विपत्तियां उसके सर पर आ गईं। So don't fear these things. और इन चीजों से घबराए नहीं Just speak what God's blessing is over your life and your situations. और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन और अपनी परिस्थिति के ऊपर में घोषणा करते रहें बस। The next one is और अगला है in 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 to 5, उसका 1 से लेकर 5 तक। we see Paul telling the church at Corinth, और हम देखते हैं कि पौलुस जो है कुरिन्थ कलीसिया से कहता है, there is one man who is practicing sexual immorality. और वहां पर एक व्यक्ति है जो अनैतिक शारीरिक संबंधों में जीवन जी रहा था। And it says here that this man was living with his father's wife. और वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने पिता की पत्नी के संग अनैतिक संबंध बना रहा था। And the church and the elders were telling him that this is a sin that he is doing. और कलीसिया और प्राचीनों ने उसे बतलाया कि जो वो कर रहा है वो पाप है। And he was not willing to change. और लेकिन वो बदलने के लिए तैयार नहीं था। And what does Paul tell? और पौलुस वहां पर क्या कहते Look हैं? at verse 5. और 5वें वचन पर आप देखिए Very important. All of you read by yourself. Verse और 5. आप सभी अपने लिए पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। What does Paul tell the believers to do? पौलुस ने विश्वासियों को क्या करने के लिए कहा है वहां पर? सिर्फ दो लाइन है। आप लोग ये जैसे पूरा बाइबल पढ़ रहे देख रहे, दो लाइन है क्या? What does he tell them to do? और वो क्या कह रहा है? हाँ? Give him up to Satan. और शैतान को सौंप दो। It's like as if to say, I'm telling somebody who's not obeying, no, I'll give you up to Satan. और बिल्कुल ऐसा जैसे आप में से कई लोग हमारी सुन नहीं रहे तो हम कह रहे चलो शैतान को सौंप दिया तुझे। So when we read this, we will think, how can Paul do this? और पौल कैसे कर सकता है? जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं। But Paul says, give him up for Satan for what? और पौल क्या कह रहा है? इसे शैतान को सौंप दो, काय के लिए? So his flesh will be destroyed, ताकि उसका शरीर का विनाश हो, but परंतु his spirit may be saved. आज की आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। So what does it mean, give him up to Satan? और इसका मतलब क्या है कि शैतान को सौंप दो? Paul is saying that this man, we have tried to correct him, he is not repenting, send him out of the church. और पौल यहाँ कह रहा है हमने प्रयास किया उसे सुधारने का, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहता, इसीलिए कलीसिया से बाहर करो। So when you send him out of the church, he's out of the spiritual covering. और जब वो कलीसिया से बाहर है तब वो आत्मिक बाड़ा के बाहर हो जाता है। And he is out of the spirit, the protection of God. और वो परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा के बाहर हो जाता है। And he is open to Satan, his attacks and the enemy's attack. और तब वो शैतान शत्रु के हमले के लिए खुला होता है। And Satan will use everything to destroy his flesh. और शैतान हर एक चीज का इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी देह नाश हो जाए। And when he suffers, he might come to a realization what he has done is wrong. और जब वो इन सारी बातों को सहता है तो हो सकता है कि वो अपने आपे में आए
कि जो कुछ उसने किया वो गलत है and he will turn back to God. और वो परमेश्वर के ओर शायद पलट जाए। And that is exactly what happens. और देखिए यही बात वो हो रहा है। And we read that in 2 Corinthians chapter 2 verse 6 to 8. और दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 तक हम वही बात को पढ़ते हैं। And Paul says, he's gone through suffering. और पौल कहता है कि वो सताव से होकर गुजरा We don't know what physical harm he went और through, हमें नहीं पता कि वो कौन से शारीरिक नुकसानों से होकर गुजरा, but he went through much sorrow. और लेकिन वो बहुत दुख से होकर गुजरा And है। what has it happened led to genuine repentance. और क्या है कि वहां पर एक मन से मन फिराव हो रहा है। And Paul writes that he himself has forgiven him. 2 Corinthians 2:10. और देखिए दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि मैंने खुद उसको क्षमा किया है। So what punishment was brought about on this man served the purpose. और जो दंड इस व्यक्ति के जीवन में लाया गया उसने उद्देश्य को पूरा किया है। And in 1 Timothy chapter 1 verse 20, और पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसके 20वें पद में Paul talks about Hymenaeus and Alexander. और हननियास और अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहा है पौलुस। And Hymenaeus is somebody who was teaching false doctrines and wrong doctrines. और वो एक ऐसा जन है जो गलत शिक्षाओं को सिद्धांतों को सिखाता था। And Alexander was someone who spoke to the Roman authorities and got Paul imprisoned. और सिकंदर वो व्यक्ति था जिसने रोमी सरकार के लोगों से बात करके पौलुस को जेल खाने में डलवाया। And Paul is saying, I'm delivering them up to Satan. और पौल कह रहा है कि मैं उन दोनों को शैतान के हाथ में सौंप रहा हूं। And so Paul is exercising his apostolic authority here. और यहाँ पौलुस अपनी प्रेरिताई के अधिकार का उपयोग कर रहा है। And he's sending them out of the church and giving them up to Satan. और वो कह रहा है कि उन्हें कलीसिया से बाहर करके वो शैतान के हाथ में उन्हें सौंप रहा है। And knowing Paul's heart, और पौलुस के हृदय को जानते हुए it was with the intent that they would repent and align themselves to God and और the truth. इस बात को सोचते हैं कि वो चाहता है कि वे मन फिराएं और परमेश्वर के वचन के अधीनता में अपने जीवन को दें। But we do not know what happened to Hymenaeus and Alexander like we know what happened to that person in the church at Corinth. और देखिए कुरिन्थ के कलीसिया के उस व्यक्ति के बारे में हम जान पाए, लेकिन हिमेनियुस और सिकंदर के जीवन में क्या हुआ हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। So when we walk in disobedience और जब हम अनाज्ञाकारिता में चलते हैं and rebellion और बलवे की आत्मा में रहते हैं and go outside our limits of what God wants us to live in and sin, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए सीमाएं ठहराई हैं जब हम उनसे अब बाहर हो जाते हैं, we become very vulnerable to Satan's attack. और तब हम शैतान के हमले के लिए बिल्कुल खुले हुए होते हैं। But as believers, we do not be afraid. और देखिए लेकिन विश्वासी होने के नाते हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। If you are living in obedience to God and in love with God, और यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति प्रेम में जी रहे हैं, we need not fear that we'll be handed over to Satan, और हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हमें शैतान के हाथ में सौंप दिया जाएगा। because we are living according to God's word. और क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जी रहे हैं। Another example here we can see where people misinterpret God's word. और एक और उदाहरण हम देखते हैं जब लोग परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ निकालते हैं। It's about the church at Corinth and how they celebrate the Lord's table. और ये बिल्कुल वैसा ही जो कुरिन्थ की कलीसिया प्रभु मेज में किस प्रकार व्यवहार करती थी। Now the church at Corinth was a very spiritual church, और कुरिन्थ कलीसिया जो है वो बड़ी आत्मिक कलीसिया थी, but they were suffering in moral and ethical standards. और लेकिन वो लोग जो है नैतिक जीवन के अंदर में बड़ा ही समस्या झेल रहे थे। And when they were celebrating the Lord's table, और जब वो लोग प्रभु भोज में सम्मिलित होते, it was more like a feast, like a party. और वो एक पार्टी या एक बड़े भोज के समान हुआ करता था। It was like just eating and drinking like a party, like a feast. और वो बिल्कुल ऐसा था कि किसी भोज के अंदर में वो गए हैं, वहां पे खा रहे हैं, पी रहे हैं,
There was no reverence and spiritual proclamation of what Jesus had done on the cross, his death, his resurrection, and his soon return. और देखिए वहां पे प्रभु भोज के प्रति कोई आदर नहीं था, ना ही इस बात का ज्ञान था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर और उस भोज को क्यों ठहराया है कि यीशु मसीह मर के जी उठे और स्वर्ग गए हैं, अब वो दोबारा लौटने पर हैं, उसके स्मरण में ऐसा करना है। वो लोग वैसा नहीं कर रहे थे। So instead of experiencing the blessings of taking part in the Lord's table, और प्रभु की मेज में भाग लेने के द्वारा जो आशीषें प्राप्त होती हैं उनका अनुभव करने के बजाय, it says, we read here that the people were dying, they were becoming weak and they were becoming sick and they were dying even before their age. Even young people were dying. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लोग जो हैं और प्रभु भोज में सम्मिलित होकर कुछ बीमार पड़ गए हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग तो जवान उम्र में ही मर गए हैं। No, they were young and they were dying prematurely. और जो जवान थे और उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है वो भी मर गए हैं। So what was happening here? There was a divine punishment from God, और क्या हो a रहा है? judgment from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक दैविक न्याय या दंड है। Why? Because they were not partaking in the Lord's table in a sacred and in a relevant way. और क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उस मेज में आदरणीय रूप से और उसके भय में भाग नहीं ले रहे हैं। So instead of enjoying the blessings of taking part in the Lord's table, और प्रभु की मेज में भाग लेने के द्वारा उसकी आशीषों का आनंद मनाने के बजाय, when we take part in the Lord's table every time, और हर एक बार जब हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं, we are actually enjoying the blessings of what Jesus did on the cross for us. और हकीकत में हम उन आशीषों का लाभ उठाते हैं जो यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए निर्धारित की। Every benefit of the cross becomes ours. और सारे लाभ जो क्रूस के हैं वो हमारे हो जाते हैं। Healing, deliverance, wholeness we should expect it when we are taking part in the Lord's table. और जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं तब चंगाई, छुटकारा, चमत्कार अपने जीवन के अंदर में हमें अनुभव करना है। We must experience the full blessings of the cross. और हमें तो उस क्रूस की पूर्ण आशीषों का लाभ उठाना है। And any lack we have, we need to experience that blessings because that is our portion. That is why we are partaking in the Lord's table. और देखिए यदि कोई कमी है तो हमें उस मेज के अंदर में उस लाभ को उठाना है और वो इसीलिए हमारे लिए वो मेज तैयार किया गया And है। they were not experiencing this blessing और लेकिन इन आशीषों का वो लोग लाभ नहीं उठा रहे थे because they were sinning and they stepped out of God's protection. और क्योंकि वो लोग पाप कर रहे थे, परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर हो गए। And that is why they were opening up themselves to weakness, sickness and dying very young. और इसीलिए वो लोग बीमार पड़े हुए हैं, कुछ लोग रोग में पड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है आधी उम्र में ही मर गए हैं। This is not God's will for their lives. और ये परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए नहीं है। But it was divine judgment. लेकिन ये तो दैवीय न्याय है परमेश्वर का। So that it can at least bring them back to the truth and they can partake in the Lord's table in the right way. और ताकि कम से कम वो परमेश्वर के सत्य में वापस आए और आदर के साथ प्रभु की मेज में भाग लें। But you and I don't have to fear that we will die prematurely when we take part in the Lord's table today. और आपको और हमको जब आज प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है कि हम जवानी में ही मर जाएंगे। Because we are taught how to take part in a relevant, meaningful way. और क्योंकि हमें तो सिखाया गया है कि हमें परमेश्वर की मेज में जब भाग लेना है तो किस आदर के साथ, सम्मान के साथ उसमें भाग लेना है। So when you are, giving the Lord's, the Lord's table, when you're sharing it with people, explain to them what is the meaning of partaking in that. और देखिए जब आप लोगों की अगुवाई करते हैं या उनको प्रभु की मेज से बांटते हैं तो आप उन्हें समझाएं प्रभु की मेज का अर्थ क्या है। And don't think that, when you take part in the Lord's table, even smallest sin, you will die. और ये भी मत सोचिएगा कि नन्हा सा पाप आपने कर दिया, प्रभु की मेज में जाएंगे मर जाएंगे। And God is waiting to judge you for the smallest sin. और परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहा कि वो छोटे से पाप के लिए आपका न्याय करेगा। But it's the other way. When we celebrate, it brings joy to God's heart, and He's willing to pour out His blessings. और लेकिन दूसरा रीति से जब हम परमेश्वर की मेज में शामिल होते हैं, आनंद के साथ में उसको मनाएं और उसमें शामिल हों।
Another very interesting, did you understand that? आप समझ रहे हैं? Yes, no? हाँ या ना? Okay, another very interesting thing is here और is एक और रुचिपूर्ण बात यहाँ पर है, 1 Timothy chapter 5 verse 23. और पहला तिमुथियुस 5 अध्याय उसका 23 वचन। Now Timothy, Paul lives in a city called Ephesus. और तिमुथियुस जो है एफिसस नामक एक शहर में रहते हैं, And Timothy has stomach problems. और तिमुथियुस को पेट में बड़ी समस्या रहती है, And Paul tells him, take little wine. और पौलुस उसको कहता है थोड़ी थोड़ी पिया करो। You know, and so people make this as an excuse और लोग है ना इसका बहाना बना लेते हैं, and say, you know, I'm drinking alcohol or I'm drinking wine और वो कहते हैं मैं तो शराब पीता हूँ या वाइन पीता हूँ, because I have stomach problem. और क्योंकि मेरे पेट में गड़बड़ी है, And the Bible says so. और बाइबल में भी लिखा है इसीलिए पीता हूँ। So, is it right or wrong? और सही है गलत है? Wrong. But Paul says, drink little wine. लेकिन पॉल ने तो कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। Darkras, yes, wine. और दाखरस हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में वाइन ही है। So why is it wrong? और गलत क्यों है? People say लिखा है Bible में, it says in the Bible. और लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है इसीलिए थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, Because I have stomach problem. और मेरे पेट के कीड़े नहीं मरते इसीलिए पीता हूँ। Paul told Timothy not to us. और देखिए Okay. हाँ? मोसेस क्या बोल रहा है? हाँ? सेहत के लिए अच्छा, गुड फॉर अच्छा हेल्थ, है, good for health. Okay. कीड़े मर जाते हैं। So you should see this in context. और देखिए हम इसको एक गंभीर संदर्भ में देखें, Always interpret Bible in context. और हमेशा बाइबल का जब अर्थ निकालते हैं तो उसके संदर्भ में आपको देखना When जरूरी है। Paul wrote this to Timothy, जब पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा, the world was not advanced in medicine, in hospitals and medicines like it's today. और देखिए संसार उस समय पर इतना आधुनिक चिकित्सा उपयोग नहीं करता था जैसे कि आज करता है। For every little stomach problem, we have different medicines. और देखिए आज तो पेट की समस्याओं के लिए हमारे पास अलग अलग दवाइयां उपलब्ध हैं, So we don't need wine. और तब हमें दाखरस या दाखमधु की आवश्यकता नहीं है। But in Paul and Timothy's time, लेकिन पॉल और तिमुथियुस के समय पर there was not enough medicines at that time. और उन दिनों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, The field of medicine was not so advanced. और उस समय पर जो विकास था दवाइयों का उतना ज्यादा नहीं हुआ, So they depended on natural things. और इसीलिए वो प्राकृतिक चीजों के ऊपर में निर्भर करते थे। So he says, take little wine. और इसीलिए वो कहता है थोड़ी थोड़ी पिया करो। Okay, so that's not an excuse that we do it today. और ये कोई बहाना नहीं है कि आज हम शाम को बैठ जाएं थोड़ी थोड़ी लेने। Because if we do that, it will become a habit. और यदि आप ऐसा करेंगे तो आदत बन जाएगी, And Satan can use that against us. और शैतान उसका उपयोग हमारे विरुद्ध कर सकता है। Another example, a scripture reference that people misinterpret is 2 Kings 20 verse 1 to 7. और देखिए एक और जो लोग गलत अर्थ निकालते हैं वो दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद में दिया गया है। Now King Hezekiah was very sick and was nearly going to die. और राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार था और मरने पर था। And God tells the prophet Isaiah, परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता से कहा, go tell King Hezekiah to set his house in order because he's going to die soon. और वो कहता है कि जाके राजा हिजकिय्याह से कहे कि अपने घर का सही अनुसरण कर ले क्योंकि वो जल्द मरने पर है। Okay, and we see when Hezekiah hears this, he repents and cries out to God, and God forgives him. और हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब हिजकिय्याह ने इस बात को सुना तो वो रो कर पछताने लगा और प्रार्थना करने लगा। And God tells Isaiah, और परमेश्वर ने फिर यशायाह से कहा, go tell Hezekiah, I've heard his prayer. और जाकर हिजकिय्याह को कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, I will heal you. और मैं तुझे चंगा करूंगा। And he says, on the third day you shall go in the house of the Lord. और वो कहता है कि तीसरे दिन तू जाकर परमेश्वर के भवन में आराधना करने पाएगा। And he says that take a figs. और वो कहता है कि अंजीर ले।
and make a lump of it and put it on that boy. और एक टिकिया बना ले और अपनी फोड़े पर उसे बांध ले। And Hezekiah does that and he's healed and he does not die. और देखिए हिजकिय्याह ने उस अंजीर की टिकिया बनाई, फोड़े पर बांध लिया और वो मरा नहीं, चंगा हो गया। So what can we learn from this? और इससे क्या सीखते हैं? Yes, God used that fig to, heal Hezekiah. और हाँ, परमेश्वर ने अंजीर का इस्तेमाल किया हिजकिय्याह की चंगाई के लिए। But we do not know if figs have that healing properties और हमें ये नहीं पता है कि अंजीर में वो चंगाई करने की सामर्थ्य है या or नहीं, medicinal properties. और या तो वो उसमें औषधि उपलब्ध है या नहीं, हमें नहीं पता है। But what we can know is that God can use natural elements and medicines also to bring about cure in our lives. और हम केवल इतना समझ सकते हैं कि परमेश्वर स्वाभाविक चीजों का इस्तेमाल कर हमारे जीवन के अंदर में चंगाई ले आ सकता है। Okay, so we'll continue after the break. और ब्रेक के बाद हम इसे आगे करेंगे।